Good afternoon class. Today we are going to discuss about the P, D and F block elements. Students, earlier we have seen how there is a division in the periodic table based on S, P, D and F block elements. Okay? And earlier we have seen about the S block element, where we have seen that there are two groups in S block element. The first is termed as the alkali metals and the second is termed as the alkaline earth metals. Okay, where we have seen that there are 14 elements in the S block elements. Okay, after that we are going to discuss about P block elements. Students, from the word it is clear that the elements in which the last electrons enter into the P subshell are called P block elements. Okay, and students, if we are talking about the configuration of P block element, then it follows the general electronic configuration, that is NS2 NP126. Okay, that is inner core is having S2 configuration, and the elements from the 13th group to 18th group belongs to P block element. Okay, in the 13th group these configuration will be NS2 NP1. For 14 it will be NP2, for 15 it will be NP3, for 16 it will be NP4, for 17 it will be NP5 and for 18 it will be NP6. Okay, and students, in all there are 6 groups of P block elements. These basically are 13, 14, 15, 16, 17 and 18, excluding helium. Okay, students, when you will see the periodic table, you see that at the very last there is helium at the top. Okay, so excluding the helium, other groups are termed as the P block element from group number 13 to group 18. Okay, if you will draw the periodic table, so here this shaded portion, this indicates the P block element. Okay, now students, let us see some points in case of P block element. हम कुछ चीज़ें देखेंगे P block elements के केस में. So here basically the group 18, the last group is termed as the noble gas. The 17th group is termed as the halogens. The 16th group are termed as chalcogens. Basically they are ore forming. And the group 13, 14 and 15 are called on the basis of the topmost element, that is the 13th group called as boron family, the 14th group is called as carbon family, and the 15th group is called as nitrogen family. Okay, and students, the elements of S and P block are collectively called representative और main group elements. अगर हम बात करें S और P block की, तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अगर हम किसी भी एक पीरियड की बात करें, लाइकवाइज सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हेलोजेंस, हम ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं. सो ग्रुप 17 में अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन. और इनके कन्फिग्रेशन की बात करें तो इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, NP5. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, सो यू कैन सी दैट नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इनकी अगर हम आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन की बात करें तो इनर कोर फुलफिल्ड रहता है और आउटर कोर में भी क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन. सो दे आर द स्टेबल वन. ओके, बेसिकली दे आर नॉट सो मच रिएक्टिव बिकॉज these elements are highly stable and hence exhibit very low chemical reactivity. Okay, now students, talking about their characteristic, अगर हम इनके characteristics की बात करें, so P block elements include both metal and non metal. P block elements में क्या होता है? metals और non metals दोनों पाए जाते हैं, जबकि हमने देखा था कि S block में क्या है? केवल metals पाए जाते हैं. now students, अगर इनके आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ की बात करें तो ये क्या होती है? रिलेटिवली हाई होती है एज़ कंपेरिजन टू एस ब्लॉक एलिमेंट. एंड स्टूडेंट्स, दे मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड. जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली
ये क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ कार्बन। कार्बन हमेशा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। आप कार्बन के कोई भी कंपाउंड्स लीजिए, वेदर इट इज़ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट सम ऑफ देम शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन। इनमें क्या होता है, जैसे हमने देखा था एस ब्लॉक में, तो प्रेफरेंशियली वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की ही बात करें तो ऑक्सीजन -1, -2 कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स में दिखता है। अगर हम फ्लोरीन की ही बात करें वो -1 में भी दिखता है। डिपेंड करते हैं कि हम उसको किसके साथ उसका रिएक्शन हो रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड, दैट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट। स्टूडेंट्स, फ्रॉम द वर्ड you are very familiar, that is D block elements are those where the last electron enters in any one of the 5d orbitals। जो d orbitals होते हैं बेसिक, द 5d orbitals, उनमें से एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो जब एंटर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, एंड स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि प्रॉपरली कितने एलिमेंट्स इनमें करस्पॉन्ड करते हैं, सो इन ऑल देयर आर 10 वर्टिकल कॉलम्स। आप देख सकते हैं अगर केवल डी ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पे 10 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जो कि 10 ग्रुप को कंप्राइज करते हैं। दे आर बेसिकली द सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवन्थ ग्रुप, 8, 9, 10 and 11 and 12। okay, and students if you will see about the D block elements in deep, that is how they are named or what are their common names, so they are also called as ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर फाउंड इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। ओके, ये क्या करते हैं, एस और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड स्टूडेंट्स बेसिकली ट्रांजिशन इसलिए भी यूज़ होता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में पाई जाती है। ओके, एंड स्टूडेंट्स ऑल दीज एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज़। अब यही जिनकी हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, मतलब हमने जो देखा 13 से 12th ग्रुप तक, इनको हम फर्दर 4 सीरीज़ में रखते हैं। देयर आर 4 सीरीज़ फॉर देम। दीज सीरीज़ आर एज 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़। ओके, 4 सीरीज़ हो गई स्टूडेंट्स। अगर अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें और ओवरऑल एलिमेंट्स की बात करें, सो देयर विल बी 40 एलिमेंट। जैसे हमने देखा कि 10 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 4 सीरीज़ हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू 40 एलिमेंट। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, सो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि रिजेंबलेंस है मेटल से, दे आर हार्ड होते हैं एज मेटल्स आर। दे आर मेलिएबल होते हैं। दे आर डक्टाइल एंड these are basically have high melting and boiling point। okay, इनकी melting और boiling point क्या होती है, higher होती है। students talking about the second property, they are good conductors of heat and electricity as they are metals, they are good conductor of heat and electricity। okay, and students their ionization enthalpies are between S and P block element। इनकी जो ionization enthalpy होती है वो S और P block element के बीच में पाई जाती है। वन मोर थिंग इज़ देयर स्टूडेंट्स, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। अगर हम बात करें मैंगनीज़ की, आयरन की, आप आयरन को ही एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट्स जिनको आप अभी तक पढ़ते आए हैं। इन केस ऑफ आयरन वो +2 स्टेट्स में भी पाया जाता है, +3 स्टेट में भी पाया जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दैट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट एलिमेंट ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, बट देयर इज़ एक्सेप्शन, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी विच हैव n-1 d10 and ns2, दैट इज़ द ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड। सो इनके केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है डोंट शो मोस्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स let's talk about the F block element। अगर हम F block, now students if we talk about the F block element, so elements in which last electron enters one of the 7 f orbitals of their respective and penultimate cells are called F block element। इनको हम F block element कहते हैं। इनकी 2 सीरीज़ होती है and they are follow up in the very bottom। these are the
इनर ट्रांजिशन सीरीज़, ये क्या होती है, इनर सीरीज़ होती हैं। बेसिकली दे आर टर्म्ड एज लैंथेनाइट्स क्योंकि वो लैंथेनम को फॉलो करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज एक्टिनाइट्स बिकॉज ऑफ एक्टिनियम को फॉलो, मतलब फॉलो इन द सेंस कि लेंथेनाइट सीरीज़ होती है और एक्टिनाइट सीरीज़ होती है। एक्टिनाइज इट सम टर्म्स सो फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंसियम, एक्टिनाइड हम थोरियम से लॉरेंसियम को कहते हैं, और लेंथेनाइड हम सीरियम से ल्यूटेटिनम को कहते हैं। ओके, लेंथेनाइट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ रेयर अर्थ मेटल। लेंथेनाइट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ रेयर अर्थ मेटल। ऐसा इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स बिकॉज दे ऑकर स्कार्सली इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, और अगर हम एक्टिनाइट्स की बात करें सो देयर इज़ नो सच नेमिंग, एंड स्टूडेंट्स द फर्स्ट थ्री दैट इज़ थोरियम, प्रोएक्टिनियम एंड यूरेनियम ऑकर इन नेचर, ये तीनों नेचर में मिलते हैं, एंड द रिमेनिंग 11 एलिमेंट्स दैट इज़ फ्रॉम नेपटीनियम टू लॉरेंसियम क्या होता है, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, और चूँकि इन्हें यूरेनियम के थ्रू बनाया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू, इस वजह से इन्हें हम ट्रांस यूरेनियम भी कहते हैं। ओके, that's why we call them at trans uranium. Now student, let's talk about their characteristic. So basically they are heavy metals, and as they are metal they have generally high melting and boiling point. They show variable oxidation state, and the compounds are generally colored. Basically the F block elements have colored compound, or the compounds are formed from elements of F block element are colored, and they have high tendency to form complexes. ये क्या, इनकी जो टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वो हाई होती है, एंड एट लास्ट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइट सीरीज़ आर रेडियो एक्टिव। अगर हम एक्टिनाइट सीरीज़ की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।